And today, as I told you, that we would be starting with the chapter Nationalism in India. That particular day, I had shared one timeline with you. मैंने आप लोगों के साथ में एक टाइमलाइन को शेयर किया था. And I told you that जो हमारा नेशनलिज्म है, यानी कि आज हम क्या बोलते हैं, इंडिया हैज़ अटेन फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. बट जो ये 47, हाउ वी अटेन्ड इट, what was the movement behind it, who were the people जिन्होंने इस मूवमेंट को जो है हेल्प किया था, पुश किया था. बिकॉज वेन एवर वी आर स्टडिंग हिस्ट्री, हम लोग एक चीज़ लर्न करते हैं, दैट इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश थे, दे हैड बीन रूलिंग ऑन आवर कंट्री फॉर मेनी ईयर्स, बट इट वॉज 1947. तो what was the actual period जब हमारी जो है, when we started having the push to chase the British out of our country. I shared the timeline, जो कि मैं आपके साथ बाद में भी शेयर करूँगी. That is because you will be always, अगर आप उस timeline को रखोगे तो that would always help you out. Not now, but always. This is the timeline which I was speaking about. अगर आप अपने स्क्रीन पर देखते हो, this timeline, when you receive it on your WhatsApp, keep it as a you can say forever, in fact, because this timeline is also used while you are giving the exams for IAS and all. जब आप हायर लेवल पर जाते हो, ये आपको बताता है that it was 1885. And if you go in this manner, 14 to 18, World War 15, return of Gandhi ji, Satyagraha, then if you go till here, you will find that this was perhaps the actual years when India had fought for its freedom in a very organized manner. मतलब इसमें आपके वो movements हैं which were taken, which took place during that. And of course कोई भी movement जो है वो एक दिन में जो है, it cannot be, you cannot call that कि आज हमने movement start किया and the movement have succeeded. It had to face many traumas, many troubles, many obstacles. Not all the movements were successful, but at last you can say in around 45, in fact, we was given the freedom. बट येस उसको एक फॉर्मलाइज वे होने में, दैट इज टू अनाउंस इट, टू मेक ऑल द अरेंजमेंट्स, उसको होने में आपका जो है इट टुक अराउंड 2 years. एंड इट वॉज 15th August 1947 when we were given this freedom. That is, we started living in a free country. As already discussed, this chapter will be having a question which will be one marker. बहुत सारे one marker हैं. You also have the map question from this chapter. Secondly, you will be having a 5-marker question which can be based on the civil disobedience, difference between non-cooperation and civil disobedience, and different questions. So this chapter, from the point of view of boards, it's really important. So
आई एम जस्ट स्टार्टिंग द चैप्टर एंड इस चैप्टर में जो आपके कुछ पिक्चर्स हैं या फिर सोर्सेज हैं, इनको भी आप लोग जो हो थोड़ा सा देखोगे। जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, लाइक द सोर्स, दीज कैन बी द क्वेश्चंस ऑफ योर 4 मार्कर, दैट इज आपका जो एक पैसेज क्वेश्चन आएगा, ये इनमें से आपके क्वेश्चंस के आने के जो है चांसेस बहुत सारे हैं। सो यू शुड ऑल्सो रीड दो सोर्सेज। ऑफकोर्स वी हैव इन अवर क्वेश्चन आंसर्स, हम लोग करते हैं, बट फिर भी आपको जो है व्हेन यू आर गिविंग द टेस्ट, जैसे मैं तो आपको पता है आई विल बी गिविंग द टेस्ट, एंड इनमें जो टेस्ट आपके होते हैं दैट वुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू कॉल एज, कभी आपका जो है MCQs होंगे तो कभी आपके रिटर्न होंगे। तो जब भी आपका होगा यू हैव टू ऑल्सो सी कि ये सोर्सेज वाले जो क्वेश्चन है वो हमने वो पढ़ा है अच्छे से। As we have seen that modern nationalism in Europe came to be associated with formation of nation states. ये तो आपका यूरोप में था, जो हम लोगों ने पढ़ा था इन यूरोप कि इट वाज मतलब अलग अलग स्टेट्स थे एंड उसके बाद उनको उन्होंने फॉर्म किया था इनटू वन, जैसे कि आपका फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इटाली हुआ, and they also use certain symbols, certain songs, certain ideas जिनको हम लोगों ने एलिगोरी का नाम दिया था. We had given the name of allegory. तो in India ये एक this was somewhere or the other, this ये जो revolution था that was inspirational to many countries. And in India हमारे यहाँ पर क्या था, हमारे यहाँ पर it was not a nation state. हमारे यहाँ पर हमारी आइडेंटिटीज अलग नहीं थी. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या था कि वी वर रूल्ड बाय समवन एल्स, वी वर कॉलोनाइज्ड, एंड दैट इज व्हाई हमारा जो मूवमेंट है इट इज मोर ऑन टू द कॉलोनियल मूवमेंट. प्रॉब्लम क्या है, हमेशा होता है, दिस इज नॉट टुडे, एवरी टाइम इट इज, कि जब तक आप खुद को किसी भी चीज से लिंक नहीं करते हो, whatever it is, whether it is a movement, whether it is your studies, whether it is anything, unless and until you don't connect it to yourself, you would never succeed. जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि ये मेरा काम नहीं है, I'm just participating because सब लोग participate कर रहे हैं, मैं participate कर रहा हूँ, but unless and until you don't understand what is your participation, why your participation is very important, तब तक इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है. So in India also when the movements took place, like Quit India आपका था, नेशनल उसके उनके नॉन कॉपरेशन था, सिविल डिसोबीडियंस था, means there were number of movements and people even participated in that. The only thing is they were not able to relate themselves with them. वो लोग participate करते थे अपने फायदे के लिए, अपने नैरो फायदों के लिए. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together, but each class and group felt the effects of colonialism differently. Their experiences were varied. Their notions of freedom were not always the same, जो मैंने अभी आपको बताया. Unless and until we don't feel in the same manner, हम कभी किसी भी चीज को जो है अचीव नहीं कर सकते. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups, forge मतलब इनको मिलाया together into one, but the unity did not emerge without conflict, because till then जब तक हमारी आज़ादी का जो लास्ट पड़ाव था ना, तब तक हमारे सबके साथ में एक ही प्रॉब्लम थी कि हम आज़ादी का मतलब अपने लिए लेते थे. मैं आज़ाद हूँ बस. इट वॉज नॉट द आज़ादी फॉर ऑल, इट वॉज आज़ादी फॉर मी. एंड हमारे मैनेजमेंट में देयर इज अ थियोरी दैट वी शुड ऑलवेज रिप्लेस अ वर्ड आई विथ वी.
और जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि हम एक नेशन के हैं एंड वी लिव इन द सेम नेशन, हमारा पहनावा, हमारा खाना, हमारी बोली अलग हो सकती है, बट हम लोग फिर भी एक ही माँ के बच्चे हैं। अब आपके घर के अंदर भी, इफ यू आर हैविंग ब्रदर सिस्टर्स, आई कैन बेट दैट योर सिस्टर और योर ब्रदर माइट नॉट बी लाइक यू। वो आपसे ज्यादा समझदार या फिर वो आपसे कम होगा, दोनों हो सकते हैं। हो सकता है कि आप एक लेवल में एक्सट्रीम इंटेलिजेंट हो, वो एक लेवल में एक्सट्रीम इंटेलिजेंट हो। इट्स नेवर। या कभी घर में देखिए, तो क्या हम लोग एक घर के अंदर साथ में नहीं रहते हैं? तो दैट वाज द नोशन। और यही आपका 5 मार्कर क्वेश्चन आता है लास्ट का, दैट कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से रिपीटेड क्वेश्चन, कि जब हम लोगों ने कलेक्टिवली we started realizing the belongingness, that was when we actually got the freedom. So we have already read about the growth of nationalism, but अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं that is non cooperation, civil disobedience and other areas. ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस गो बैक, थोड़ा सा हम लोग जो है मूवी को रिवाइंड कर रहे हैं, टक 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 करके पीछे जा रहे हैं। हम सब ब्लैक एंड वाइट जमाने में पहुंच गए हैं, ठीक है, आप भी मैं भी, क्योंकि मैं भी पैदा नहीं हुई थी, यू नो, आई एम नॉट दैट मच एंशिएंट लाइक द शनि मंदिर ऑफ अवर हाउस, वो जो थोड़े टाइम बाद ही हो जाता है ना एंशिएंट, तो ऐसा नहीं है। So now let us go to those areas when our grandfathers were there. So now what happened? Let us come to that. 1885 में ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज देयर इन दिस ऑल्सो, इवन दो इट इज नॉट गिवन, बट ये होता है। एंड एक आपके पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो डेमो उसमें है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, उसमें भी ये क्वेश्चन है, दैट इन 1885 many of the Indians जो कि रिच थे, those who belong to higher caste, क्योंकि इंडिया के अंदर the casteism was one of the important aspects. तो उस वक्त में when the rich people, the elite people, elite मतलब जो बहुत मतलब कि जो पढ़े लिखे होते हैं, they decided to fight the system. और उन्होंने जो है सिस्टम को फाइट करने के लिए दे ऑल कॉन्ग्रीगेटेड, वो लोग सब असेंबल हुए और उन लोगों ने जो है अपना एक सिस्टम बनाया और उनको उन्होंने फॉर्म किया INC, दैट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। काइंडली डू नॉट, आप जो कांग्रेस हम सुनते हैं, द वन विच इज अ पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज ओनली पार्ट ऑफ दिस INC। आज जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, वेदर इट इज बीजेपी और समथिंग, ये सब एक टाइम दे वर अंडर INC, एंड INC वाज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट वाज अ ग्रुप, इट वाज अ प्रेशर ग्रुप, यानी कि दिस वाज फाउंडेड बाय AO ह्यूम, मतलब कि दिस वाज एन एंग्लो इंडियन, उन्होंने फाइंड किया था AO ह्यूम, and along with all the people who belong to rich wealthier family, उन्होंने इसको फॉर्म किया था in 1885, right? So that was the period when actually people started taking the interest कि हम ब्रिटिश को पावर से कैसे हटाएं। And there were many great leaders like Motilal Nehru, C.R. Rajagopalachari, जिनमें से बाद में कुछ लोग जो थे, they were even in the cabinet ministers. अब this was a period, और इसके बाद क्या हुआ, 1905, then 1909, उसके जो बाद का जो पीरियड था, the world was undergoing severe problems. 1914 आपका जो था, दैट वाज अ पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर। 1914 टू 1918 जो है वो आपका वर्ल्ड वॉर का पीरियड था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो व्हेन आफ्टर 1990 दिस वाज, ये जो मूवमेंट था ये ज्यादा हो गया। क्यों हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड द वर्ल्ड वॉर
have on the national movement? ये पेपर का आपका क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन. तो सबसे पहले क्या था, द वर्ल्ड वॉर की वजह से it created new economic and political situation. It led to huge increase in defense expenditure, क्योंकि वॉर के लोन लिए थे, एंड द टैक्सेस, पहली बार इंडिया के अंदर जो है इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था. कस्टम ड्यूटीज थे, दूसरे टैक्सेस थे, लेकिन इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था. देन द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज्ड. अब कॉमन पीपल कैसे खा सकते थे, कैसे पी सकते थे? Villagers were called upon to supply soldiers and forced recruitment. This is a one marker question also. मतलब जबरदस्ती जो यंगस्टर्स होते थे उनको भर्ती कर दिया जाता into the war. Then there were crop failures, and then epidemic, और इसके वजह से अराउंड 12 to 13 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन इज 10 लाख, इतने लोगों की डेथ हो गई थी. सो दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1. दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन ऑफ योर पेपर. उस वक्त में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी. नाउ दैट वॉज अ टाइम व्हेन महात्मा गांधी हैड रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका. Mahatma Gandhi was a barrister, मतलब कि he was a lawyer, and he had fought in South Africa against the black system. वहाँ पर उन्होंने जो है रेसिस के लिए किया था, जिसको वो सत्याग्रह कहते हैं. That was a time when he had been thrown out of the train. वहाँ पर उनको एक रेलवे डब्बे से बाहर फेंक दिया गया था. अभी भी वो जो डब्बा है, वो जो जगह है ना जहाँ पर ने, वो सारे दे आर ऑल हिस्टोरिकल इन साउथ अफ्रीका. एंड दैट वाज हाउ ही फॉट विद नॉन वायलेंस. नाउ व्हाट इज सत्याग्रह? अब क्वेश्चन आता आपका कि व्हाट इज सत्याग्रह. मतलब इट इज, सत्याग्रह इज द पावर ऑफ ट्रुथ and need to search for truth. सत्य के लिए आग्रह. सत्य आग्रह यानी कि सच के लिए लड़ाई. और according to Mahatma Gandhi, he said if the cause was true and you are struggling against injustice, then you don't need a physical force. आपको लड़ने की जरूरत नहीं है. आपको जो है, if you are taking the non-violent way, जैसे सत्याग्रह, दैट इज इनफ. लेकिन अगर आप सच के लिए लड़ रहे हो तो विदाउट सीकिंग वेनेजेंस और बीइंग एग्रेसिव, सत्याग्रही कुड विन बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. सीकिंग वेनेजेंस मतलब बिना किसी रिवेंज के, बिना गुस्सा किए. People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth using the violence. उन पर जबरदस्ती नहीं, उनको समझाने की जरूरत है. एंड ही बिलीव द धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल द इंडियंस. तो गांधी जी का मानना था कि अगर हम सत्याग्रह फॉर्म करते हैं, अगर हम सत्याग्रह मतलब कि ऑर्गेनाइज करते हैं, देन द ब्रिटिश विल अंडरस्टैंड एंड सी द ट्रुथ. अब ये आपका जो है, दिस इज योर मैप क्वेश्चन. One of the important map question, the 3 places where Gandhi ji had organized satyagraha for different people, and most 99.9% this paper, this question comes only in map, not even in 1 marker. But वो 3 जगह कौन सी थी? The very first was बिहार. आपको ये सीक्वेंस में इसलिए याद करना है क्योंकि वो ईयर को भी आपको करेगा. बिहार में जो चंपारण है वहां पे हुआ था. सेकंड आपका जो है खेड़ा में हुआ था, विच इज इन गुजरात. एंड थर्ड आपका है अहमदाबाद. सो दीज वर द 3 एरियाज. जो बिहार में हुआ था उसके ऊपर, आई एम सॉरी टू से, बट
You have a very big chapter in English in class 12. Excuse me, ma'am. जिसको 12th स्टैंडर्ड के बच्चे सबसे ज़्यादा डिस्पाइस करते हैं कि मैम ये चैप्टर क्यों है हमारे पास, इंडिगो चैप्टर. That is because the government had forced the people to sign contract for growing indigo. याद रखना इंडिगो. एंड बाद में उन्होंने इस सिस्टम को, जो प्लांटेशन सिस्टम था, इसको उन्होंने जो है बिना कहे खत्म कर दिया. सो दिस सत्याग्रह was against the oppressive plantation system of Indigo, Bihar, Champaran. The second one was for the peasants of खेड़ा. खेड़ा आपका सूरत से थोड़ा आगे आता है, and that was because the people were not able to pay the revenue. And the third one was for the cotton mill workers, जो कि अहमदाबाद में थे, for their salaries and all. तो जो पहला हमारा है, that is in Champaran in Bihar. The first one is Champaran in Bihar. The second one is Kheda, and the third one was Ahmedabad. ये तीन आपको याद रखना है, and these three are the map questions basically. तो उन्होंने जो है सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया. हाउ? सत्याग्रह का मतलब होता है पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉट यूजिंग एनी वायलेंस, नॉट रेजिंग वॉइस, नॉट खून खराबा कहीं पर भी नहीं, धरना पे बैठ जाना, हड़ताल कर देना, मतलब कि दैट वाज द वे उन्होंने किया था. तो जब गांधी जी ने सत्याग्रह किया तो द ब्रिटिश वॉज एनरेज्ड, और उन्होंने जो है बहुत जल्दी में द Imperial Legislative Council जो था, they passed the Rowlatt Act. Now what is Rowlatt Act and why the Indians were outraged by it? It's a NCERT question and also one of the important, or you can say one of the repeated question from this. What was Rowlatt Act and why Indians were enraged, और Indians जो है वो इसके against क्यों थे? तो दिस वॉज बिकॉज ये जो रॉलेट एक्ट था, दैट गेव इनॉर्मस पावर्स टू द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट को पावर करता था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्ट, मतलब कि जो लोग हैं उनको वो बंद, मतलब कि खत्म, शांत कर सकते थे. दे कुड अरेस्ट एनी पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट एनी ट्रायल एंड पुट इनटू द जेल. यानी कि उन पे कोई कार्यवाही नहीं होगी, देयर वुड बी नो एफआईआर, नथिंग, सीधा उनको जेल में डाल दिया जाएगा. So Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such injustice, और उन्होंने जो है रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है सत्याग्रह शुरू किया 6 अप्रैल. अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस कम्स इन द 1 मार्कर क्वेश्चन एंड मेनी टाइम्स द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड. रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने क्या क्या किया था? तो द रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड, the workers went on strike, railway shops and workshops were closed. मतलब बहुत सारी चीजें जो उन्होंने बहुत शांति से किया था गवर्नमेंट, जो इंडियंस ने. Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as railway and telegraph would be disrupted. तो ब्रिटिश जो है वो चाहती थी कि इस एक्टिविटीज पर रोक लगा दी जाए. तो उन्होंने क्या किया, जितने भी लोकल लीडर्स थे, महात्मा गांधी थे, इन सबको पिक किया, महात्मा गांधी को दिल्ली आने से मना कर दिया. एंड नाउ ये जब अब आता है यहाँ से, दिस इज वेयर योर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जलियांवाला बाग मैसाकर, द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसाकर. अब ये जो है, पहले उन्होंने रॉलेट एक्ट किया,
रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह को रोकने के लिए क्या किया उन लोगों ने? अराउंड 10th April 1919 द पुलिस इन Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on bank, post offices and railway. और उन्होंने जो है मार्शल लॉ इम्पोज किया and General Dyer took the command. General Dyer was the head of military. मार्शल लॉ का मतलब होता है रूल बाय दिस मिलिट्री. इट्स अ काइंड ऑफ कर्फ्यू, जैसे हमारे वो जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन हुआ था ना वैसे. बट इन द मार्शल लॉ व्हाट हैपेंस, अगर आप ब्रेक करते हो तो यू वुड बी शूट एट साइट, आपको इमीडिएटली मार दिया जाएगा. तो ये उन्होंने जो है 10th अप्रैल को कर दिया था. बट व्हाट हैपेंड इज कि लोगों को नहीं पता था. पीपल वर नॉट अवेयर. दैट वाज नॉट द टाइम व्हेन यू वर हैविंग द व्हाट्सएप और यू वर हैविंग द गूगल्स जहाँ पे आपको इमीडिएटली मैसेज मिल जाए. तो देयर एंड 13th को इंडिया के अंदर बैसाखी मनाई जाती है. तो मेनी पीपल हैड gathered एट जलियांवाला बाग, जो उस वक्त में दिस वाज अ ओपन ग्राउंड. एट दैट मोमेंट इट वॉज नॉट अ वेरी बिग, मतलब कि बस ये पीछे ऐसे बना हुआ होता था और यहाँ से आपके एंट्री पॉइंट्स होती थी. तो इट वॉज अ ग्राउंड और देर वॉज सम मेला भी चल रहा था, कोई मतलब कि पॉलिटिकल एक्टिविटी भी चल रही थी. So many people had come over there and they did not know that martial law has been imposed. On that day, a large crowd gathered in enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government's new repressive measures. Others had come to attend the Baisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that was imposed. और वो लोग वहां पर थे. तो जनरल डायर वो उस एरिया में गए, उन्होंने जो भी आपके एग्जिट पॉइंट थे जहां से लोग बाहर जा सकते थे उसको ब्लॉक कर दिया. एंड ही ओपन फायर. if any one of you has visited this area, तो आप देखोगे कि दिस इज मेड इन दिस मैनर, ऐसा बना हुआ है. यहाँ पे आपके जो है कुआं वगैरह बना हुआ है, तो लोग उसके ऊपर छलांग लगा रहे थे. एंड नेचुरल है कि उस वक्त में स्टैम्पेड हुआ. स्टैम्पेड मतलब एक दूसरे के ऊपर गिर जाना, नीचे सारे लोग गिर जाना. तो many people were killed in the stampede. Many people jumped into the well. बहुत सारे वहां पर अभी भी गोलियों के निशान है. हिज बाद में जब उनके ऊपर व्हेन ही वाज प्रोड्यूस्ड, तो उन्होंने कहा कि ही वांटेड टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट इन द टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ. वो लोगों में डर बिठाना चाहते थे. बट जो भी है, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस ट्रेजेडी that took place in the history of India. अब जलियांवाला बाग जो हुआ वो तो हुआ. अब इसके बाद क्या हुआ स्पेसिफिकली, दिस ऑल इवेंट्स जो थे that took place in the North Indian towns. There were many strikes, clashes, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू की. वेरी गुड. वेरी नाउ जलियांवाला बाग के साथ में क्या हुआ, जब लोगों को पता लगा कि ऐसा हुआ है, तो लोगों ने भी जो है खूब अपनी रिवेंज लेने की कोशिश की. बट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, सीकिंग टू ह्यूमिलिएट, टेरराइज द पीपल. वो क्या करते थे, जहां इंडियंस को देखते तो दे वुड बी आस्क्ड टू रब देयर नोज, अपनी नाक नीचे रगड़ने के लिए बोलते, उन्हें बोलते कि आप सल्यूट करो. एंड पीपल जो थे उनको डराया करते थे. मेनी पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस, जो कि पाकिस्तान में है पहले, दिस वाज आल्सो इन इंडिया, गुजरानवाला, वहां बॉम्ब, मतलब चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ खून खराबी था. लुकिंग एट द वायलेंस, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. वाई वॉज वेरी लेस, ये वाला चांसेस बहुत कम आते हैं. सत्याग्रह कॉल्ड ऑफ.
That was because the movement had turned violent. So this was how पहले सत्याग्रह हुआ, फिर रॉलेट एक्ट हुआ, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह हुआ, फिर जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ, एंड देन द एंटायर कंट्री वाज फेसिंग वायलेंस, एंड गांधी जी ने जो है इस एक्ट को थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया. अब महात्मा गांधी जी को लगा दैट नाउ इट इज द नीड दैट वी नीड अ ऐसा एक मूवमेंट होना चाहिए जिसमें लोगों को समझ भी आए एंड साथ में भी रहे. सी 1900 वाले हमारे पीरियड्स हैं, वो एक तरफ वी वर यूनाइटेड बट ऑन द अदर हैंड जो ये हिंदू एंड मुस्लिम वाला जो एक लड़ाई होती थी, दैट वाज टू मच. So in Gandhiji wanted that the Indians should be Indians, not Hindu or Muslims. उनका मानना था कि we should unitedly we should fight against the rule. But problem क्या थी कि we were divided on the basis of Hindu and Muslim. तो तब क्या हुआ? There was one movement which is called as खिलाफत movement. And ये जो खिलाफत है ये था आपका ऑटोमन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो वहां पे ऑटोमन एम्पायर जो है दैट वाज डिफीटेड, एंड इट वाज सेड दैट ऑटोमन एम्पायर के ऊपर बहुत हार्श ट्रेटी यानी कि उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, एंड द स्पिरिचुअल हेड था जो इस्लाम वर्ल्ड का खलीफा, उन पर जो है पेनाल्टी डाली जाएगी. So many people, the Muslims around the world were supporting the Khalifa. स्पेलिंग आप लोग याद रखना, कभी कभी खलीफा में आपके स्पेलिंग्स में KHALIPHA भी आता है, तो नो इट्स ओके. खलीफा इज अ स्पिरिचुअल हेड. तो many people wanted that खलीफा के साथ ऐसा ना हो around the world, and in India also खलीफा को बचाने के लिए द मुस्लिम्स हैड फॉर्म द खिलाफत कमिटी, एंड मुस्लिम लीडर्स दैट इज मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये थे वो जिन्होंने वो खिलाफत कमिटी जो है वो फॉर्म की थी. इन लोगों ने जो है डिस्कस भी किया. तब गांधी जी को लगा कि अगर वर्ल्ड में मुस्लिम्स एक हो सकते हैं तो व्हाई नॉट वी यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स. He saw this as an opportunity to possibility of a united mass to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement. So पहले, again this is a map question. This is actually a map question. आपके 4 वो आते हैं कांग्रेस सेशन पेपर में. There are 4 कांग्रेस सेशन. द पहला जो है वो कैलकाटा, कोलकाता नहीं लिखोगे, कैलकाटा. द फर्स्ट वॉज कैलकाटा, द सेकेंड वॉज नागपुर, द थर्ड वॉज मेड्रास एंड द फोर्थ वॉज लाहौर. कलकत्ता आपका जो था सितंबर 1920, देन दिसंबर 1920, 1922 एंड ये था आपका दिसंबर 1929. And these are the Congress sessions. मतलब वैसे तो बहुत सारे सेशंस हैं, लाइक द वेरी फर्स्ट सेशन जहाँ पर आपका INC फॉर्म हुआ था दैट वाज इन बॉम्बे, लखनऊ में आपका था, बट आपके पेपर में 4 ही सेशंस हैं. सो इन द कैलकाटा सेशन he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as Swaraj. मतलब the Hindus would be supporting for the Khilafats and the Muslims will be supporting for the Swaraj movement. And ये propose किया गया था आपका 1920 सेशन में. The NCM बोलेंगे बच्चा हम लोग नॉन कॉपरेशन हर जगह नहीं बोलेंगे. जो NCM था that was proposed. It was accepted in the Nagpur session. Now उन्होंने अपने जो बुक है उन्होंने बोला है कि ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन. सो इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट
द ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। ये उनका मानना था कि अगर आज ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे थे ना, तो वो हमने खुद उनको दिया था रूल करने के लिए, हमने उनको कॉपरेट किया था। जब वो हमारे सामने रूल्स लेकर आते थे तो हम उनकी बात को मान रहे थे, और जिस दिन हम उनकी बात को नहीं मानेंगे, नॉन कोऑपरेशन, when we would not be accepting their terms and conditions, तो they would leave। ये गांधी जी का मानना था। हाउ वुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? बहुत कम आया है, दिस कम्स एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। मतलब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन को एक शेप कैसे दिया, उनके क्या स्टेप्स थे? देयर वर 3 स्टेप्स। दिस केम वंस इन द पेपर इन बोर्ड्स। फर्स्ट, he proposed that the movement should be unfolded in stages। मतलब पहला होगा जो लोगों को सब मतलब कि वो दिया हुआ है अलग अलग टाइटल्स। उस जमाने में द ब्रिटिश यूज टू गिव द टाइटल्स टू पीपल जिनके साथ उनको बड़ी खुशी होती थी। फॉर एग्जाम्पल नवाब्स, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था, उन्होंने भी अपने टाइटल को वापस किया था। तो दे यूज टू गिव द टाइटल्स विद, या फिर विलेजेस देते थे, टाइटल्स देते थे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा जो टाइटल्स या अवार्ड दिए उन्हें वापस करो। फिर जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स थे उनको बॉयकॉट करो। कोई भी आपका जो फॉरेन गुड्स है या इलेक्शंस है उनको बॉयकॉट करो। पहला हमारा यही होगा। देन अगर गवर्नमेंट जो है इफ इट इज यूजिंग रिप्रेशन, अगर वो ज्यादा जबरदस्ती करेगी, तो पहले तो हम सिर्फ नॉन कॉपरेट कर रहे हैं। नॉन कॉपरेट का मतलब है कहना ना मानना, यानी कि जैसे आप अपने घर में करते हो ना, मुझे नहीं खाना आज, मैं नहीं खा रहा, दैट इज नॉन कॉपरेशन। एंड सिविल डिसोबीडियंस इज when you become disobedient, mannerless, when you break the law। तो उन्होंने कहा अगर आप नहीं मानोगे then we would be launching civil disobedience। So this way there were 3 ways through which they wanted to establish non-cooperation। अब ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट हम इसको बोलते हैं। We call it as non cooperation खिलाफत मूवमेंट। Many within Congress were however concerned about the proposals। एक तो they were reluctant to boycott the council elections। फिर उनको लगा कि वायलेंस हो जाएगा। Then they felt that there would be violence, and अगर violence होगा तो what will happen? Once again वही problem होगी जो पहले होती थी। So they all were against non-cooperation for some period। It was not very। आप सितंबर में उन लोगों ने लॉन्च किया था, and in December it was accepted। और दिसंबर में उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। द NCM खिलाफत जो है दैट बिकेम अ प्रॉपर मूवमेंट। वो एक मूवमेंट बन गया आपका। दैट इज नॉन कॉपरेशन वाज द वन फॉर द स्वराज। नॉन कॉपरेशन मतलब नॉट कॉपरेटिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द ब्रिटिश। And Khilafat actually was the one which had been started by the Muslims for the help to the Ottoman Empire। और ये दोनों जो है ये मिल गए, जिसको हम कहते हैं NCM खिलाफत मूवमेंट, यानी कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। They were reluctant। In the month between September and December there were intense tussle within Congress। tussle मतलब आपस में। For a while there seemed no meeting point between the supporters and opponents। Finally, in the Congress session of December 1920, a compromise was worked out and NCM was adopted। ये आपका, as I said that there would be 3-1
आपका proposal is in Calcutta, that is 1920 September, and this proposal was accepted in December 1920 at Nagpur. These are the 4 map questions. 3 आपके सत्याग्रह वाले थे, ये 4 आपके अगेन मैप के हैं. Now what happened? क्या जैसा गांधी जी ने चाहा था वैसा हुआ? तो ये जो NCM था, it was there in the city, it was there in the rural areas, it was there in the tribal areas, that is आपके जंगल, and it was also there in the plantations. मतलब 4 अलग अलग आपके रिलीफ पॉइंट. सिटी आपका जहां पर लोग काम करते थे, रूरल एरिया जहां पर लोग पीजेंट्स थे, ट्राइबल आपका फॉरेस्ट एंड आपका प्लांटेशन. हम लोगों ने जो अभी फॉरेस्ट रिसोर्सेस किया था उसके अंदर आई हैड टोल्ड यू दैट देयर वाज वन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट एंड क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट था, तो वो यहाँ पे हमें यूज आएगा. इस वाले में से आपका क्वेश्चन पेपर में से है एंड इट कम्स वेरी वेरी यूजुअली बहुत आता है कि व्हाट वाज द मूवमेंट इन द टाउन एंड व्हाई डिड इट स्लो डाउन. यू कैन सी इन योर बैक आपके जो एनसीईआरटी है उसी का पीछे दिया हुआ एक क्वेश्चन दैट no, this question this question has been changed. This was also there first. This was there last year. That why it had slowed down. ये क्यों slow down हुआ था? And the very first thing is गांधी जी का proposal था कि you have to return back the titles. You should boycott the elections. You should boycott the schools, colleges. अब problem क्या था कि ये सब करेंगे तो how people will work. भाई अगर मैं जो हूँ इफ आई एम वर्किंग तो बाद में मुझे नौकरी नहीं मिलेगी. इफ आई हैव लेफ्ट द स्कूल तो वेयर आई विल गो. इफ आई हैव लेफ्ट द लॉ तो मैं कहाँ जाऊंगी. तो दिस वाज अ प्रॉब्लम. तो सबसे पहले व्हाट हैपेंड इज वी विल बी डूइंग द मूवमेंट इन दिस टाउन टुडे. द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज. क्या किया था उन्होंने? Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned. Lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in all the province except Madras, where the Justice Party, the party of non-Brahmin, felt entering the council was a way of gaining some powers. मतलब normally in most of the areas जो आपके higher क्लास के जो लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा पावर मिलता है, तो वो चाहते थे कि काउंसिल के इलेक्शन में रहकर दे शुड फाइट द इनजस्टिस. सिर्फ वो एक प्रोविंस था, मद्रास मतलब द करंट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ केरला, ये वाला एरिया. बाकी सब जगहों पर जैसा गांधी जी ने कहा था वैसा ही हुआ. द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड. हमारा वो था उस वक्त में स्वराज अपनाओ, और देयर वर मतलब कि वो क्या करते थे, फॉरेन गुड्स को जला देते थे. द लिकर शॉप्स वर पिकेटेड. पिकेट का मतलब होता है शांति से किसी भी चीज के खिलाफ खड़े होना. जैसे आप फैक्ट्री के बाहर प्ले कार्ड लेकर खड़े हो गए. नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ violence. Picketing is a form of demonstration on protest in which the people block the entrance to the shop, office or factory. Foreign clothes were burnt in bonfires. The import of foreign cloth मतलब उन्होंने कहा हम तो स्वदेशी पहनेंगे, हम तो जो है खादी पहनेंगे. In many places merchants and traders refused to trade in foreign goods and finance foreign trade. और धीरे धीरे लोग imported clothes को फेंकने लगे एंड इंडियन टेक्सटाइल्स और इंडियन लूम्स को पहनने लगे. बट व्हाई डिड द
movement slow down. अब क्वेश्चन है कि why did the movement slow down? अगर इतना अच्छा मूवमेंट था तो वो कम क्यों हो गया? तो the movement slow down because पहली बात, खादी was too expensive. क्योंकि मिल क्लोथ हमेशा सस्ता होता है. दिस इज बिकॉज मिल आपका मास में बनता है और खादी आपका हाथों से बनता है. देन एवरीबडी कुड नॉट ऑफर टू बाय इट. सेकेंडली, द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस आल्सो पोज्ड अ प्रॉब्लम. क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूशन तो थे ही नहीं. अब कोर्ट तो एक ही होता है ना. अब अगर उस कोर्ट को नौकरी छोड़ दिया तो वेयर विल द पीपल गो? स्कूल्स दूसरे थे नहीं, कॉलेजेस दूसरे थे नहीं. The Indian institution had to be set up so that they could be used in place of British one. They were slow to come up. So students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. And that is why it slowed down in the city. आपके पेपर में ये चार अलग अलग हैं. Most of the time the question comes on that कि what was the movement in city and why did it slow down? वहाँ पर वो कम क्यों हो गया? The reason is simple, that people, alternates तो कुछ था ही नहीं, तो where will the people go? And that was the reason that it slowed down. Then अगर खादी लेना चाहते हैं तो not everyone liked खादी. Secondly, it was too expensive also, and that was the reason that this movement started slowing down in the cities. So in a nutshell, what we have read today is, first, that what is nationalism in India, how it started after the First World War, what was the effect of First World War on Indian economy, ये आपका 5 marker question है. Then the return back of Mahatma Gandhi. Then organizing 3 satyagraha, Champaran, Kheda and Ahmedabad, that is for the plantation workers in indigo. Then peasants, and third is for the mill workers. Then the Rowlatt Act को oppose करते हुए one more सत्याग्रह, which turned violent, which turned into the infamous Jallianwala Bagh tragedy, followed by repression by the British, asking the Indians to rub their nose, humiliating the Indians, and Mahatma Gandhi had to step down. He had to withdraw सत्याग्रह. पहला पड़ाव सत्याग्रह था. पहला पड़ाव सत्याग्रह था. Now the second one was the starting of Khilafat movement along with Khilafat movement for the Khalifa, that is the Ottoman Empire, जिसको महात्मा गांधी जो है उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा. उन्होंने स्वराज और खिलाफत मूवमेंट को मिलाने की कोशिश की. उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की. द प्रपोजल वाज मेड इन कलकत्ता 1920. It was accepted in Nagpur and it was unfolded in 3 stages. पहले टाइटल्स वापस होंगे फर्स्ट. सेकेंड आपके जो है they would boycott the elections, and third one will be if there is ज़्यादा बदतमीजी करेंगे तो there would be civil disobedience. Then the movement started in the cities. The people returned back their titles, the people returned back their jobs, but there were no alternatives, and khadi was expensive, so it got slowed down. So this is what we have learned today.